students, welcome to social science class. In political science, today we have a topic. Is it good to have political competition? Remember, we are doing a chapter electoral politics, and at this time, this class, what we are going to start with is it good to have political competition? Elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties at the constituency level. It takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, elections will become pointless. इलेक्शंस जो हैं ये पॉलिटिकल कंपटीशंस ही होते हैं। ये कंपटीशन बहुत सारे एग्ज़ाम का होता है और इसमें से बाज़ाहिर जो दिखने वाला सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंपटीशन होता है। कंस्टिट्यूंसी लेवल पे इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं आपस में इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल। अगर कंपटीशन ना हो तो इलेक्शन पॉइंटलेस हो जाता है। बट इट्स गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। Clearly, an electoral competition has many demerits. But is it good to have political competition? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन का होना ज़रूरी है, अच्छा है? हाँ, इलेक्टोरल कंपटीशन के बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. इससे किसी भी लोकेलिटी में डिसयूनिटी पैदा होती है. पीपल्स के लोगों के फैक्शंस बन जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज and other grounds. You would have heard of people complaining party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. लोकेलिटीज़ में कंपटीशन पार्टी लेवल पे जब होता है, डिफरेंट पार्टीज़ के डिफरेंट लोग जो होते हैं एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस रखते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ लोग जो होते हैं इलेक्टोरल फाइट्स को जीतने के लिए प्रेशर बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में अच्छा नहीं होता है. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो मुल्क के फ़ायदे के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और वो मुल्क को की खिदमत करने के लिए इलेक्शन में आते हैं. वो ऐसे आइडियाज़ में ड्रैग नहीं करते, अनहेल्दी कंपटीशन में नहीं जाते, वो डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो गैर ज़रूरी इल्ज़ाम भी नहीं लगाते. Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for competition in elections as the way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know that what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे
उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उनको इस चीज़ के बारे में पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है, ये डर्टी कंपटीशंस होने वाले हैं, इस तरह के इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी इसी तरह की पॉलिटिक्स को ऑप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। In an ideal world, political leaders know what is good for the people, are motivated only by a desire to serve them. जो अच्छी सोच, बुलंद सोच वाले लोग होते हैं, उनकी सोच में यही होता है कि वो जो कर रहे हैं वो मुल्क के भलाई के लिए कर रहे हैं, वो लोगों के अच्छे के लिए कर रहे हैं। उनका एक ही डिज़ायर होता है, एक ही ख्वाहिश होती है, वो होता है अच्छा काम। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो ऐसे आइडियल वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक ऑल other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power and positions for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. How do we deal with this real life situation? होना कुछ और चाहिए, होता कुछ और है। आजकल की दुनिया में, पूरी दुनिया में पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो तो लोगों की भलाई की भी सोचते हैं बात, लेकिन असल मकसद जो होता है वो होता है अपना पॉलिटिकल करियर बनाना, अपने पॉलिटिकल करियर में तरक्की लेना, पावर में रहना, पावर को छीन के लेना। ये आज की पॉलिटिक्स में ये रिस्की ड्यूटी वो लेते हैं। उनके आइडियाज़ और लोगों की ख्वाहिश, दो चीज़ों में तज़ाद ज़रूर आता है और इसी वजह से आता है। हाउ डू वी फील दिस रियल लाइफ सिचुएशन? ये रियल लाइफ सिचुएशन ऐसे कैसे निपटा जाए? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and a more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें दो तरीके बताए जा रहे हैं। पहला है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए, उनको समझाया जाए, उनकी नॉलेज और करैक्टर, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी नॉलेज और करैक्टर को सुलझाया जाए, बेहतर किया जाए। दूसरा और जो ज़्यादा बुनियादी सच्चा पॉइंट है वो ये है punished for not doing so, कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको अच्छा करने पे, लोगों की खिदमत करने के लिए रिवार्ड्स दिए जाएं और ना करने पे, कोताहियाँ करने पे सज़ा दी जाए। Who decides this reward or punishment? अब बात यह है कि रिवार्ड और पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? द सिंपल आंसर इज द पीपल। लोग डिसाइड करेंगे। दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। इलेक्टोरल कंपटीशन में तो यही होता है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स incentives to political parties and leaders. They know that if they raise issues that people
want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. कि जब इलेक्शंस लड़ने वाले, काम करने वाले एक बार अपने वादे पूरे ना करें तो दूसरी बार उन्हें इलेक्ट ही ना किया जाए, सज़ा देने का ये तरीका है. Can we say that Indian elections are democratic? To answer these questions, let us take a look at how elections are held in India. क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के इलेक्शंस जो हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने के लिए तो हम इलेक्शंस पे एक नज़र मारते हैं. इंडिया लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर every 5 years. After 5 years, the term of all elected representatives comes to an end. 5 साल के बाद जो टेन्योर होता है 5 साल का, उसके बाद लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट असम्बलीज हों, उनके इलेक्शंस दोबारा कराए जाते हैं. पुरानी जो विधानसभाएं होती हैं वो टूट जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. एक ही बार में इलेक्शन होते हैं तमाम कंस्टिट्यूंसीज में, एक ही दिन में हो या कुछ दिन में. ये जो इलेक्शंस होते हैं इन्हें जनरल इलेक्शंस कहा जाता है. Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called by-election. कभी कभी एक ही कंस्टिट्यूंसी में एक ही सीट पे इलेक्शन कराया जाता है जो वैकेंसी फिल करने के लिए होता है. जो वैकेंसी मौत की वजह से या रिज़ाइन की वजह से आती है. कभी किसी एमएलए ने, कभी किसी एमपी ने रिज़ाइन दे दिया या उसकी मौत हो गई तो उसके बाद वो वैकेंसी खाली हो जाती है, वहाँ पे इलेक्शन कराया जाता है, तो उससे हम कहते हैं बाई इलेक्शन. इस चैप्टर में हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे जनरल इलेक्शंस पे ही. Now, electoral constituencies. You read about the people of Haryana electing 90 MLAs. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for that 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case in our country. We follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purposes of elections. These areas are called electoral constituencies. The voters who live in an area elect one representative. So, if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way
market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers. If he does not, the customer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and the leaders to serve the people. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं? आप लोगों ने सुना होगा, खैराना में 90 MLAs होते हैं, हमारे यहाँ 87 होते हैं। और ये 90 MLA जो होते हैं, क्या पूरा हरियाणा के लोग, हर एक आदमी 90 MLAs को वोट देता है? आप लोगों को शायद इस बारे में ताज्जुब हो। हमारे मुल्क में जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, यहाँ पे मुल्क को डिवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। डिफरेंट एरियाज़ को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बताया गया है, जहाँ पे एक एरिया को एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है और वहाँ पे एक नुमाइंदा चुना जाता है। जैसे करना एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे बारामूला, अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करें, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करें, तो बारामूला एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। श्रीनगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। बड़गाम एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में बांट के वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग जो चुनते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है। ये एक मार्केट की तरह होता है। अगर आपको अच्छी रेट से कुछ चीज़ नहीं मिल रही तो आप दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं। इसी तरह से अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपका अच्छा काम नहीं कर रही तो आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनते हैं। कस्टमर एक शॉप से दूसरी शॉप पे जाता है। इसी तरह से वोटर एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास चला जाता है। और यही चीज़ जो होती है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर्व करती है। सो दिस सफाइस फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।